السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی، بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہماری عبادتوں کا تنہا مالک ہے، حقدار ہے، رازق ہے۔ برادران اسلام، اس سے پہلے کی آیات میں ربا یعنی سود کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی چند آیات سود ہی کے متعلق ہیں، اور بقیہ آیات جو ہے قرض کے معاملات میں جو لین دین ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آیت نمبر 282 کے اندر۔ آج کا درس آیت نمبر 276 سے لے کر 282 تک انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور اللہ رب العالمین ہر ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ بڑی پیاری آیت ہے، اور اس کا آخری جو حصہ ہے جو اس کا معنی ہے اس میں بہت اللہ رب العالمین نے ڈیپ معنی رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کی برائی ہے، سود بری چیز ہے، اس کی بے شمار برائیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس بری چیز کو ہٹا کر ایک آپشن متبادل چیز لا دی، اور وہ کیا ہے؟ صدقات۔ آپ سوچیں کہ آج ہم سود کی طرف کیوں جائیں؟ یہ تو سوال بعد میں ہوگا کہ سود حرام ہے کہ حلال ہے، یہ تو اللہ نے آج سے 15 سال پہلے بیان کر دیا کہ سود حرام ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے مسلمان ہوئے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن پر ایمان لائے مسلمان ہوئے، آخر وجہ کیا ہے کہ جس چیز پر ہم ایمان لا رہے ہیں اس چیز کو مان نہیں رہے، بس سمجھ رہے۔ سود حلال ہے یا حرام، ایک سموچہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس قرآن میں جو صحیح بات ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ نے جس کام کو حکم دیا ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس قرآن کے اندر جو چیز منع کر دیا گیا ہم نہیں کریں گے، ہے نا۔ وجہ کیا ہے کہ سب کچھ جان بوجھ کر ہم سود کی طرف کیوں جائیں؟ تو معلوم ہے سود حرام ہے، حرام حلال یہ بعد میں، سوال یہ ہے کہ ہم سود کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سمجھ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو اللہ نے جواب دیا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، ہم نے صدقات کو روک لیا، سمجھ گیا؟ پیچھے آیت گزری، آیت نمبر 272 اللہ نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خطاب ہوتے ہیں عزت نفس کی خاطر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ نے کہا
लयसअलुन्नास इल्हाफन, उन लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते कि देखिए हमारी बच्चा रो रहा है, दूध का पैसा मेरे पास दे दीजिए, हम अगले हफ्ते दे देंगे। घर में अनाज नहीं है तो आप कुछ इंतजाम कर दीजिए, आप तनख्वाह मिलेगी तो हम दे देंगे, थोड़ा कर्जा चला दीजिए, दवा लाना है। उन लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। और जाहिल के लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका माना था नादान। नादान ये सोचते हैं यह सब उम्र जाहिल अगनिया मिन ताकुब, नादान ये सोचते हैं तो मांग नहीं रहे हैं तो मालदार है। अल्लाह ने सब खाका खींच दिया। तो मोहताजगी, फकीरी, गरीबी दो तरह की। एक आदमी खुद आपके पास चल कर आएगा, सवाल करेगा क्या परेशान हाल है, एक आदमी नहीं आए तो मर जाएगा, आप देंगे 100% कोशिश करेगा नहीं लेने, लेकिन हमको 200% कोशिश करना तो देंगे, समझ गए ना। अल्लाह ने जिक्र कर दिया। तो यहाँ अल्लाह ने कहा यमकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। तो अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि देखिए हमारे माशरे में बंधन लोन है, तो ये लोन है, तो फला लोन है, लेडीज लोन है, लोग ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उससे पहले हमें ये जायजा लेना होगा कि वो जात क्यों रहे सूद की तरफ, तब जाकर उसका हल निकल आएगा। तो अल्लाह ने सूद को जब हराम करार दिया, ये अल्लाह ताला के लिए रहम करम का मामला है कि दीन को इतना आसान बनाया अल्लाह ने, इतना प्यारा दिन है कि मुआशरे के अंदर क़यामत की सुबह तक क्या हालात और सिचुएशन रहेंगी, अल्लाह ने उसके हिसाब से कुरान को नाज़िल कर दिया। अब एक आदमी गरीब है, उसको ज़रूरत है, आप नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, कहाँ जाए, अच्छी ना। इल्ला माशाअल्लाह जो मजबूत ईमान वाले, पुख्ता ईमान वाले, वो नहीं जाएंगे हराम चीज़ों की तरफ, वो बर्दाश्त कर लेंगे, वो नमक रोटी खा लेंगे, तो पानी पीकर सेहरी और पानी से इफ्तार कर लेंगे, लेकिन सूद की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक मुसलमान और मोमिन होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि अगर सूद के ऊपर हम तंज कर रहे हैं लोगों को, तो उसका हल क्या है हमारे पास। सवाल ये, अल्लाह ने हल बताया कि हम सदकात और खैरात को एक महीने से रमजान से जोड़ दिया हमने। खूब सदका करना है रमजान में, खैरात करना है रमजान में। ज़कात का मसला क्या है कि जब आपके पास मान के जेवर है तो 85 ग्राम सोना हो, उस पर एक साल गुजरे, अब किसी के पास जनवरी में हो गया 85 ग्राम सोना, तो ज़कात कब निकालेगा वो? जनवरी में। हम कब निकालें? रमजान में। ये तरीका सही नहीं है। हाँ, उलमा ने बात ये कहा है चूंकि रमजान इबादतों वाला महीना है और अल्लाह ताला इसमें हर नेक अमल को कबूल करता है, तो आप इसको डिले कर सकते हैं। कर सकते हैं, समझ रहे हैं? कर भी सकते, नहीं कर सकते, करेंगे तो इसमें फिक्स हो गया, इन्हें हमको वही करना है, कर सकते हैं। तो कब करेंगे? जब हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे ताल्लुकात में कोई गरीब नहीं मिल रहा है तो हम डिले करके रमजान मिला देंगे। लेकिन तो किसी को जरूरत है जनवरी में और हमारे ज़कात निकालने का वक्त हो गया, फौरन निकाल के जरूरत को पूरा कर दो। ये तरीका है ज़कात। इसमें बात याद रखें, अगर कोई ज़कात रमजान में निकाल रहा है तो गलत नहीं है, तो डिले कर सकता है, कोई मान इसकी इजाजत नहीं। अब अल्लाह ने कहा, आगे बयान किया, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। कफ्फार कहते हैं नाशुक्रा, नाशुक्रा को, असीम गुनहगार को अल्लाह पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बु, हब्बा युहिब्बु का मतलब मोहब्बत करना, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता ऐसे लोगों से जो नाशुक्रे हैं और जो गुनहगार है। अब आप देखिए, क्या मुसलमान नाशुक्रा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मुसलमान है, अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है, नहीं भी दे रखा, जिस हाल में अल्लाह ने जिंदा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह कोई चीज़ हमें दे रहा है और उस पर हम शुक्र नहीं बजा लाते। शुक्र के बारे में दर्स गुजर चुकी है इससे पहले, अगर आपको याद होगा कि शुक्र सिर्फ जुबान से करने का नाम नहीं है। अल्लाह ने कोई चीज़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने शुक्र अदा कर दिया, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर तहज्जुद पढ़ते थे, पाँव आपके सूजन हो जाते थे, पाँव में फूल जाते थे। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप तो नबी हैं, पैगंबर है, आपके अगले पिछले गुनाह माफ, क्या जरूरत है इतने लंबे लंबे क़याम करने की, तहज्जुद पढ़ने की, नमाज़ें पढ़ने की, छोड़ दीजिए, आराम कर लीजिए। उन्होंने एक जुमला कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
अफला अन अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? लग समझ आ रही? शुक्र जुबान के साथ साथ आसा व जवारी से भी होना चाहिए। हम लोग शुक्र का माना ये समझते हैं कि अल्लाह ने कोई अच्छी नेमत दी, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमने शुक्र को यहीं तक बांध दिया है, महदूद कर दिया है। नबी ने क्या कहा अपनी बीवी से? हाँ ये बात सही है कि मैं नबी पैगंबर हूँ, लेकिन आयशा ये बताओ क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र कैसे अदा किया? अल्लाह की इबादत करके। ये नुक्ता हमें और आपको याद होना चाहिए। यहाँ अल्लाह कह रहा है अल्लाह नाशुक्रे को, गुनहगार को पसंद नहीं करता। तो ये सोचना कि नाशुक्रा काफिर होगा, गुनहगार काफिर होगा, हम तो चूंकि मुसलमान हैं, नहीं मेरे भाइयों, मुसलमान भी इस कैटेगरी में है। ईमान वाले होने के बावजूद हम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा नहीं कर रहे। मोमिन मुसलमान होने के बावजूद हम गुनाह कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कह दिया, अब काफिर तो सिरे से इस्लाम से खारिज है, अल्लाह उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। ये हुक्म हमारे और आपके कि हम कभी भी अल्लाह का नाशुक्रा बंदा ना बने और गुनाहगार ना बने, मत याद रखिए। मैंने इसलिए कहा कि आयत के आखिर हिस्से में माना बहुत डीप है। डीप का माना ये हुआ कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि चलो कभी कभी साल में एक दो बार गुनाह कर भी ले, ये कभी भी ख्याल तक मत लाइए। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह गुनहगार को पसंद नहीं करता, अल्लाह गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। तो हम मुसलमान होने के नाते हम सिर्फ नेकी ही करें, कोशिश करें। अल्लाह माशाअल्लाह इंसानी फितरत है, कभी कभी अनजाने में कोई गलती या गुनाह हो तो अल्लाह उसको माफ कर देता है, लेकिन हम जानबूझकर कभी गुनाह ना करें। उसके बाद आयत नंबर 277 अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे, व अकामुस सलाता और नमाज को कायम करे, आतौ ज़कात और ज़कात अदा करे, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम, उन पर दुनिया के अंदर किसी किसी का खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और ना आखिरत में वो गमगीन होंगे। अभी भी आयत देख लीजिए, इतनी बार आयत हमारे और आपके सामने गुजर चुकी है, लेकिन माना कि टिप्पणी देख लीजिए। अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू, जो बेशक जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करे। क्या नेक अमल में नमाज नहीं है कि नहीं? नेक अमल में ज़कात है कि नहीं? अल्लाह ने अलग से बयान किया, व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात। सोचिए, मसलन यहाँ पे लोग बादशाह भी बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, दर्स में बैठे हैं। किसी का नाम जैद है, किसी का नाम आम्र है, किसी का नाम कुछ है। हम देख रहे हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं। अब हम कहें कि जैद कहाँ है, ये उसकी एक क्वालिटी होगी। इतने लोगों में एक आदमी का नाम पुकारा है, सब लोग दर्स में बैठे हुए अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह की किताब को सुन रहे हैं, लेकिन जो स्पीकर होते हैं भाई जैद नजर नहीं आ रहा, तो कोई बोलेगा इमाम साहब तो जैद बैठे हुए, बोलेगा ना इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग गुनाह कर रहे हैं? नहीं, सब नेकी कर रहे हैं। एक आदमी का नाम आगे यानी उसकी खुसूसियत को अल्लाह ने बयान कर दिया। अल्लाह ने दो चीज़ों को अलग से बयान किया, जबकि मजमूई तौर पर सब एक है। अल्लाह ने कहा कि जो ईमान लाए और नेक अमल करे, नेक अमल में नमाज भी है, नेक अमल में रमज़ान की रोज़ा भी है, ज़कात भी है, सदक़ात भी है, खैरात भी है। लेकिन अल्लाह ने कहा वक़ामुस सलात, और जो नमाज को कायम करते हैं, तो आतौ ज़कात, और जो ज़कात देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माशरे के अंदर हम अमन सुकून चाहते हैं, माशरे के अंदर हमारे दिल एक दूसरे से अगर जुड़े रहे जब चाहते हैं, तो एक ये कि हमें नमाज को अदा करना होगा, अभी अदा नहीं कायम करना होगा, कायम करना होगा। लफ्ज़ भी गौर कीजिए, अरबी के अंदर पढ़ने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कहते हैं इकरा, वो आयत कितनी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ पैगंबर आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर नमाज के साथ सलात कहते हैं, नमाज को अरबी में अस्सलात, कभी भी अल्लाह ताला ने नमाज के साथ इकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि नमाज पढ़िए। आपको अंदाजा होगा ये अरबी की खुसूसियत है कि कहाँ पे कुल लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने कभी भी नमाज के जब इस्तेमाल किया तो अकामा युकीमु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। आतौ ज़कात, और ज़कात दो। नमाज हम बदनी इबादत कर रहे हैं, कोई भी पढ़ सकता है नमाज, अमीर भी गरीब भी, ठीक है। आतौ ज़कात, ज़कात दो।
ज़कात कोई भी नहीं दे सकता। समझ गए बात को? अल्लाह ने माशरे में बैलेंस कैसे बना के रखा है। अमीर को भी पैदा किया, गरीब को भी पैदा किया। जैसे ऊपर आयत गुजरी कि इन्नल्लाह यमकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। सूद को जब मिटा दिया तो एक आदमी को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब वो कहाँ से जरूरत पूरा करेगा? तो अल्लाह ने ऑप्शन ला दी, वही भी सदकात, सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। अल्लाह ने गरीब को पैदा किया, एक घर, दो घर, चार घर, पांच घर गरीब, दो लोगों को अमीर बना पैदा कर दिया। बैलेंस होना चाहिए। अमीर को आजमाएगा वो गरीब को दे रहा है कि नहीं, गरीब को आजमा रहा है वो अल्लाह से मांग रहा है कि नहीं, दिक्कत मुसीबत में सब्र कर रहा है कि नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है या शिकवा शिकायत कर रहा है। हम गरीब हैं, सब लोगों के कपड़े बन रहे ईद में, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे रमजान की इफ्तारी में, हमारे घर में सिर्फ छोटा सा खजूर है और एक दो फल है, बस। ये अल्लाह चेक करना चाहता है। तो अल्लाह क्या है, हम पूरा आजमाने के लिए पैदा किया। अल्लाह दी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम आजमाएं अमल का एतबार से तुम्हें से बेहतर कौन बेहतर अमल करने वाला है। तो अल्लाह ने समाज मुआशरे को जो बनाया तो 10 घराना गरीब बनाया, तो 4 अमीर लोगों को पैदा किया। चारों से कहा कि हम वहां से उठ के नहीं आएंगे गरीबों को घर में पैसा देने के लिए, आप दीजिए। आपको देने के लिए हमने आपको पैसा दिया। आपके पास जो पैसा है वो आपका नहीं है, मेरा है। तो किसने दिया हमें और आपको पैसा? अल्लाह ने दिया है। आप उधर ध्यान दीजिए और दिल खोल के ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? सहाबा की जिंदगी में जाइए, सहाबा के लिए दिल खोल के खर्च करते थे। आप सीखिए और डरिए मत कि खत्म हो जाएगा। डरिए मत कि पैसा खत्म हो जाएगा, डरना तो है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो कन्फर्म शक है कि हमें तो कोई नहीं मरेगा, कन्फर्म बात है। डरना तो है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो खत्म होने वाली चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान दें कि पैसा खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह ने बैलेंस किया। तो अल्लाह ने ज़कात पर हुक्म दिया, इसीलिए ज़कात 1 महीने में ना निकाला जाए, वरना मदद का मामला तो 1 ही महीना में रह जाएगा। हर कोई अगर रमजान में निकाल दिया, और ये जरूरी नहीं कि कोई किसी का माल जो निसाब को पहुंचेगा वो रमजान ही होगा, तो जरूरी है। तो ज़कात साल लग जाए, कोशिश कीजिए कि हमारे आस पास रिश्तेदार में जो मुस्तहिकीन है उन तक हम पैसा पहुंचा दें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों का अजर अल्लाह ही के पास है। अल्लाह ने कहा कि मेरे पास अजर है। क्या है? अल्लाह ने हाइड कर दिया, छुपा दिया, अंदाजा नहीं लगा सकते अल्लाह क्या देने वाला है। समझा रही? अल्लाह कह रहा है मेरे पास अजर। जब अल्लाह देगा इन चीज़ों की बुनियाद पर, नेक अमल की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, नमाज की बुनियाद पर, ज़कात की बुनियाद पर, तो अल्लाह क्या देगा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो फेल हो जाएगा, उससे भी बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अता करेगा। अल्लाह ने कहा वला खौफुन अलैहिम, ये बहुत अहम नुक्ता है। ऐसे लोगों पर दुनिया में कोई खौफ नहीं होता। आज हम खौफ में है ना, फिर उसकी हुकूमत आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, या अल्लाह तब तो ये हो गया, अब क्या हो? ये खौफ क्यों है? नमाज कायम नहीं करते, हम ज़कात नहीं देते सही से। हम अगर सच्चे नमाज के पाबंद हो जाए और सच्चे ज़कात देने वाले, हमें कभी सब जहनिया बना नहीं जाएगा। जहन जाएगा अल्लाह का डर का। अगर ऐसा होगा तो अल्लाह क्या करेगा? अगर हम गुनाह करेंगे अल्लाह कैसे इंतकाम लेगा, अल्लाह कैसे सजा दे देगा। लेकिन हम इन चीज़ों में कच्चे हैं, तो एक तरफ ध्यान जा रहा है कि फिर अगर वो जीत गया तो क्या हो जाएगा। सोचिए, अल्लाह ने कहा वला खौफुन अलैहिम, दुनिया में कोई खौफ नहीं होगा। आज खौफ है हमारे दिल में, है कि नहीं है? क्यों? पाबंदी नहीं है नमाज, ज़कात की अदायगी नहीं कर रहे हैं। ज़कात का माना होता है कि हर चीज को जमा करके कैलकुलेटर लेके बैठ के मुकम्मल हिसाब करके इतना निकालना है। हम कैसे निकालते हैं? बहुत ज्यादा मैंने दिया है, चलो 50,000 निकालते हैं, हो गया, बाकी सारा उसी को बांट दीजिए। ये तरीका ज़कात का नहीं है। एक एक पाई पाई का हिसाब करके हमें अल्लाह के राह में देना है। फिर अल्लाह ने कहा बोला हम याज़नून, और जहाँ तक दुनिया का सवाल खत्म, कोई खौफ नहीं होगा। मरने के बाद आखिरत में उसे गम नहीं होगा, वो गमगीन नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह उसे जन्नत दे देगा। हश्र में सारे हिसाब किताब के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये नेक अमल, नमाज, ज़कात और अल्लाह पर ईमान लाने पर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद के बारे में बयान किया आयत नंबर 278 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से।
सूद को बयान करने से पहले अल्लाह ने एक बहुत बड़ी बात बयान कर दी। ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरने के लिए ईमान लाना जरूरी है। ईमान लाने के बाद अल्लाह से डरना जरूरी है। दोनों जुड़ा हुआ चीज से। ईमान वालों अल्लाह से डरो। किस मामले में डरना है? वज़रू मा बकिया मिन रिबा, सूद में से जो कुछ बच गया उसको छोड़ो। एक आदमी पता नहीं है ये काम भी सूद है, वो काम भी सूद है, वो भी सूद है, पता हो गया। अब उसने सूदी किस्ती पर किसी को पैसा दिया। ऐसा क्यों चलता है कि आप 10,000 ले लीजिए और हर महीना 30 रुपये आपसे ले लीजिए, जब वापस करेंगे तो पर मंथ 300। अल्लाह कह रहा है उसको इल्म हो गया, जाए तो सूद है। अल्लाह ने कहा ईमान वालों जरूर माँ बकिया बिना रिबा, सूद में से जो बच गया छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब जो पैसा हम उसको दिए हैं सूद पर, उससे सिर्फ असल पैसा लेना है, छोड़ नहीं देना है। जो असल पैसा तो लेंगे। बाद में ये समझते हैं हमने किसी को सूद के तौर पर दिया है तो सब छोड़ दीजिए। ना सब नहीं छोड़ना है। 10,000 किसी को मैं कर्ज दिया सूद पर, उसको फोन करके बोलते भाई आपको सूद नहीं दिया, सूद पटा दीजिए, तो मेरा असल पैसा है वो लौटा दीजिए। अल्लाह ने शर्त लगा दिया जरूर माँ बच्चे में रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ये क्यों अल्लाह ने बयान किया? क्योंकि आयत उतरने के बाद अब लोगों के जहन में आ गया कि ठीक अब तक जो सूद में दे दिए वो सूद ले लेंगे। समझना की बात? पिछले महीना हमने किसी को पैसा सूद पर दिया, आज हमको अल्लाह ने हिदायत दे दी नहीं तो सूद है, तो अब पैसा हम कर्ज में दे रहे हैं, सूद में नहीं दे रहे। लेकिन हम बोले नहीं हम तो पहले एग्रीमेंट हुआ था तो सूद दो। उन्होंने कहा नहीं, जो बच गया छोड़ दो। रिबा में से सूद में से जो बाकी रह गया है उसको छोड़ दो, मतलब सूद छोड़ दो, असल पैसा लो। अगर तुम मोमिन हो, शर्त लगा दिया अल्लाह ने। हम मोमिन नहीं हो ले लो सूद, जाओ। इसका उल्टा करेगा तो हमारा और अच्छा समझ में आता है। मोमिन नहीं ले लो, हम मोमिन है छोड़ो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आगे बयान किया फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा करोगे, यानी हमारे ज़हन में है चलो आज से सूदी कारोबार नहीं करेंगे, लेकिन कल तक जो हम किए हैं क्योंकि अल्लाह ने समझा दिया, हिदायत मिल गई, कल तक वाला जो हिसाब किताब हम सूद में करेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं छोड़ दो अपना असल पैसा ले लो। अगर नहीं छोड़ोगे फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह उसके रसूल से जंग लड़ने करते जाते हैं। कोई लड़ पाएगा अल्लाह से? सोचिए, अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला ताकत वाला दुनिया को बनाया है। हम सब की जान नफ्स उसके कब्जे कुदरत में। सूद के बारे में क्या अल्लाह ने कहा? अगर नहीं छोड़ रहे हो तो एक काम करो, तुम अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के तैयार हो। यानी तैयार मतलब वो जंग मत बोली तलवार ले लेना, भाले ले लेना, मैदानी जंग में चले जाना, सामने दुश्मन है इधर हम है। जंग मतलब अल्लाह इनडायरेक्टली समझाना चाह रहा है कि तुम जंग ही कर रहे हो, यानी अल्लाह मना कर रहा है और हम नहीं बना। अल्लाह रोक रहा है, सूद मत करो, सूदी काम मत करो, नहीं हम करेंगे। जंगे ना हुआ नाफरमानी। अगर ऐसा तुम नहीं करते तो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो। अल्लाह ने कहा भाई तुम अगर तुम तौबा कर लो, अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, जो असल माल है तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। यानी हम पिछले महीने तक बताए ना 10,000 रुपये किसी को दिए सूद पर, अब हम तौबा करेंगे कि अल्लाह मुझे इल्म नहीं था, इल्म हो गया, अब मैं सूद का काम नहीं करूँ। तो अल्लाह ने कहा तुम अगर तुम तौबा कर लिए फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, तो जो सूद पर पैसा दिया उसको सूद मना कर देना, असल पैसा नहीं। फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, तो असल माल है वो तुम्हारा ही है। फिर अल्लाह ने कहा ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करना और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। मतलब ना तुम जुल्म करना मतलब से सूद मत लेना और नहीं जुल्म होगा। ना तुम जुल्म करना, ला तज़लमून, तो जुल्म मत करना मतलब इसे सूद मत लेना। वला तुज़लमून, और ना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए, मतलब अब तो सूद लिया है तो बोले अरे भैया सूद माफ कर रहे तो वो भी माफ कर दीजिए, वो भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रही ना? तुम जुल्म मत करना मतलब सूद मत लो, तुम तौबा कर अपना मान ले लो, तुम पर भी जुल्म ना हो। जिसको सूद में दिए हो उसे चाहिए पूरा पैसा जो है असल पैसा वो लौटा दे, सूद ना। ये अल्लाह ने बयान किया। फिर आयत नंबर 280 में अल्लाह ने बयान किया। अब यहाँ से देखिए कर्ज के बारे में अल्लाह ने बयान किया कि जो आपसी लेन देन है कर्ज वगैरह, ये बहुत अहम मसला है
इसमें बहुत ज़्यादा गौर से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद किसी न किसी का भी मामला होगा कि किसी न किसी से कर्ज लिया होगा और आज तक नहीं होता है, देने वाला दौड़ रहा है, भाई कब तक मिल जाएगा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, घर के बच्चों को फ़ोन दे दे रहा है, नंबर को ब्लॉक कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है। इस पे पूरे तौर पे बात बयान की जाएगी कि देखिए आमतौर पर मान लीजिए कि हमको आपसे कर्ज लेने की ज़रूरत है, तो हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, भाई आप कहाँ हैं, मिलने भी आ जाओ, ऐसी सी बात है, हमको इतना रुपया चाहिए, आपने कहा कि सही बात है, बेचारा परेशान है, आपने हमको पैसा नहीं दिया। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम टारगेट सेट करें कब वापस कीजिए। हमने कहा कि ईद के बाद हम आपको दे देंगे, नहीं ईद के बाद नहीं होगा, टाइम बताइए, तारीख बताइए। हमने कहा कि ईद के 5वें दिन हम दे देंगे, ठीक है चलिए 5वें दिन हो गया, अब मेरे पास वो पैसा इंतजाम नहीं हो पाया आपको देने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी है कि जैसे मैं चल के आया था आपसे लेने के लिए, चल कर जाऊँ और कहूँ कि मुझे और रुपये चाहिए, इंतजाम नहीं हो पाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्या हो रहा है माशरे में, स्विच ऑफ मोबाइल। आप चल के गए ना कर्ज लेने, हम आए थे आपके पास, तो ये भी चल के आना होगा, नहीं चल के जा सकते फोन कर दे, भाई ऐसा है कि ये वक्त तो आ चुका है या कल आने वाला है, लेकिन इंतजाम नहीं हुआ, मैं और मोहलत चाहता हूँ, आपको अच्छा लगे, आपको खुशी हो कि ये धोखेबाज नहीं है, फ्रॉड शख्स नहीं है, क्या बोलते दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप और एक महीना दे दीजिए, एक काम कीजिए, अभी हमको ज़रूरत नहीं है, 4 महीने बाद जरूर, अब 4 महीने का वक्त दे दीजिए, तो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत आ जाए, अब वो कहीं से भी ला के मामला यही कर्ज है। हो क्या रहा है, लेने के लिए आ रहे हैं, देने के लिए कोई कॉन्टेक्ट नहीं, अब वो बेचारा घर पे आ रहा है, फला शख्स है, तो घर की औरतों को मांगी कर दिया, बोल दीजिए काम में गए हैं या मुंबई गए हुए हैं या कलकत्ता चले गए हैं, कितनी खराब बात है। अब उसमें भी एक चीज़ अल्लाह ने बयान किया कि अब वो नहीं दे रहा, माफ़ कर दीजिए, कर्ज जिसने दिया उसको अल्लाह कह रहा है माफ़ कर दीजिए, वो नहीं देगा अल्लाह आपको बेहतर देगा। अल्लाह ने कहा आयत नंबर 280 में, वह इनकान ज़ुउस्रती, अगर कोई तंग हाल हो, तंगदस्त हो, तंगी वाला शख्स हो, फनज़रत इला मैसरा, तो उसे एक मुअय्यना मुद्दत तक सहूलत फराहम कर दीजिए। एक आदमी किसी को कर्ज दे दिया, उसके हाल को जान रहा है कि दे नहीं पाए, खैर दे दिया हूँ, तो अल्लाह ने क्या कहा, फनज़रत इला मैसरा, आसानी तक उसे मोहलत दे दीजिए, उस पर मतलब सख्ती मत करिए। आपको इल्म है, बगल में मैं किसी को कर्ज देता, हमें सब जान रहा हूँ बेचारा बहुत परेशान है, तो हम उसे कहेंगे सुनो ना कल देने का वक्त था, कहेगा हाँ भाई कल तो आपको देना है, एक काम करो एक साल बाद, ये अच्छी बात है, और नज़ीरतुल्ला मैसरा, आसानी तक उसे मोहलत दे। फिर एक साल होने लगा, उसके हालात में कोई सुधार नहीं आया, लेकिन मेरे पास इतना पैसा है कि ना भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उस शख्स के बारे में है, अगर ना लौटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना लौटाने का तरीका तरीके से हम जानते हैं कि वो तंगदस्त है, हम जानते हैं कि वो बदहाल है, हम जानते हैं कि वो मोहताज, वो गरीब है, तो हम खुद ही मोहलत देते हैं। ऐसे लोगों को मोहलत ना दे जो कर्ज लेकर बड़े बड़ी शॉपिंग मॉलों में घूम रहे हैं, ये भी एक इसका एक पहलू है। आपके सामने ऐसे मुंह बना के आ रहे हैं जैसे लगता है कि अगर आज आप नहीं दिए तो कल भूखे मर जाएंगे, और आप फूट फाट से कपड़ा खरीद रहे हो, मॉल में घूम रहे हैं, ऐसा भी पाया जाता है, ये हकीकत है। आप 50 रुपये का चावल खा रहे हो, मिनी कट चावल खा रहे हो, ऐसे लोगों को मोहलत मत दो, यानी आपको देना होगा, ये भी एक समाज का पहलू है। तो अल्लाह ने कहा कि वनज़ीरतुल्ला मैसरा, उसे आसानी पर मोहलत दे दीजिए। फिर भी नहीं दे पाए, एक साल हो गया, आप देख रहे हैं कि उसका हाल और खराब है, तो अल्लाह ने कहा अन तसद्दकू, अगर तुम सदका कर दो, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। ये नुक्ता उन लोगों के पास नहीं मौजूद है जो कर्ज देते हैं, उनका मकसद है कि लेना ही है, चाहे जैसे हो। अल्लाह ने कहा वन तसद्दकू, अगर तुम सदका कर दो, माफ, सदका मतलब माफ कर, तो माफ करो तो अल्लाह के यहाँ वो सदका हो, माफ कर दो तो अल्लाह के यहाँ सदका हो जाएगा। सदका करेंगे तो अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझिए पहलू को। अल्लाह ने कैसे सिलसिले को कड़ी की जोड़ा है, अल्लाह ने कहा उसको माफ करो, तो अन तसद्दकू, अगर तुम सदका कर लो, वन तसद्दकू हुआ खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है,
ये हर उस आदमी के इल्म होना चाहिए जिनको अल्लाह ने मालदार बनाया है, जो कर्ज देते हैं, कर्ज देने के काबिल हैं, और वो देख रहे हैं अपनी आंखों से कि गरीब है, उभर नहीं रहा, रिकवर नहीं हो रहा गरीबी से, तो अल्लाह ने कहा तो उसको माफ कर दो, मैं उसको सदके के खाते में लिख दूंगा। अरे तो मर के आओगे वो तो बाद में है, दुनिया ही में मैं तुमको उसका बदला दूंगा, और आखिरत में तो क्या कहेंगे। लेकिन खैर हमारे बेहतर है, और मुसलमान बेहतर चीज़ों को पसंद करता है। मुसलमान अब ये एक फल है, ये सेब है, ये सेब है, ये सेब है, हम गए खरीदने के लिए, इफ्तार के लिए सेब खरीदने, तो दुकानदार कह रहा है कि ये बेहतर सेब अच्छा है, ये अच्छा, इसको ले लीजिए। ऐसी बात, अच्छी चीज़ को हम पसंद करेंगे, ये तो चीज़ों को नहीं लेंगे। तो सदके में भी ये ध्यान होना चाहिए, कर्ज में भी ये ध्यान होना चाहिए। तो बेचारा नहीं दे पा रहा है, क्या जरूरत है उसको तंग करने की, चलो अल्लाह के रास्ते में सकता है, उसको नहीं बोलना है कर्ज वाले को, जो कर्जदार है, कि मैं चलो माफ कर दूँ, उसको कहो चलिए आपको देने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगा बाद में फिर ले लीजिए, आप ले सकते। लेकिन ये नहीं कहना कि मैंने सदका कर दिया तो उसको बुरा लगेगा थोड़ा सा, कि सदका खैरात की बात आती है। हालांकि खैरात अच्छी चीज़ है, खैर से खैरात से भलाई नेकी। अल्लाह ने आगे बयान किया, तुम तालमून वअन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान जाओ, ये भी देखिए अल्लाह ने क्या कहा, शर्त लगा दिया, तुमको पता ही नहीं कि सदका कितना अच्छा चीज है, जो लोग जानते हैं लोग सदका करते हैं। अगर तुम जानो, अगर तुम्हें इल्म हो जाए, तुम्हें नॉलेज हो जाए, ये कहने का मतलब ये हुआ कि कितनी भलाई है कर्ज माफ करने में, जो हम नहीं जानते, कितनी भलाई है। और ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत तादाद में हैं जिसको हम जानते नहीं। ये लोगों को कर्ज देते हैं, वो अदा भी करता है, बीच में रोक देते हैं, नहीं ना 10,000 की 5,000 दे दिए, अब मत दीजिए, अरे हम बोले मत दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे लोग हैं, शुरू में लेते हैं क्यों, चेक करने के लिए कोई देने वाला है कि नहीं, ये भी करनी चाहिए, हिम्मत अपनानी चाहिए। आप किसी को कर्ज दें, वो कहा कि मैं 500-500 करके दे दूंगा हर महीने, आप चेक कीजिए, एकदम अल्लाह वाला मत बन जाए, लेना ही नहीं है तो उसको मौका मिल जाएगा, ये बकरा ठीक है यहीं से लेना है बार बार। हिकमत समझिए बात को, अल्लाह ने क्या बेहतर कुरान में अंदाज अपना है, 2-3 महीना लीजिए, आपको यकीन हो जाए कि नहीं ये ईमानदार आदमी, ये खुददार आदमी, जरूरत पड़ा कर्ज लिया, दे भी रहा है, भाई काम करो अगले महीने से नहीं देना, ये मेरे तरफ से आप बच्चों के लिए चलिए खत्म, तो उसको भी मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। असल में अल्लाह ये चीजें इसलिए बयान कर रहा है ताकि मुसलमान का दिल जुड़ा रहे, अलग ना हो एक दूसरे से, तासुब ना पैदा हो, बुग़्ज़ ना पैदा हो, दुश्मनी ना हो, नफरत ना हो एक दूसरे के दिल में। तरीका हमारा और आपका नहीं चलेगा, तरीका कुरान का चलेगा। अगर तुम जान जाओ कितना बेहतर है सदका करना, तो माफ कर दो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 281 के अंदर, वत्तकू, डरो, यौमन, उस दिन से डरो या बचो, उस दिन से डरो, तुरजाऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम लोग अल्लाह की तरफ लौटाए जाओ। ये दोनों को, कर्ज देने वाले को भी हुक्म है, कर्ज लेने वाले को भी हुक्म है कि तुम ये मत सोचना कि हम नहीं दिए उसको, दौड़ा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, वो थक हार के वो चुप हो गया तो हम बहुत बड़े शेर हो गए, ये मत सोचो। देखो एक क्वालिटी है, लोग कहते हैं ना, हम जिस माशरे में रहते हैं, अरे हमारे अंदर क्वालिटी कैसे किसी से लेना है, हम देते भी नहीं, और समाज के माशरे में ऐसी तरजीह है, बड़ी इज्जत है कि नहीं तरह की। अल्लाह ने कहा उन लोगों को, वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, तुरजाऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओ। सब अल्लाह तुम्हारा शेरगिरी निकाल देगा। अब बताओ, तुमने किसी का कर्जा लिया था, हाँ अल्लाह दिए नहीं, तुम्हारे खाते में 100 आदमी है, 100 लोगों को तुम बेवकूफ बनाए हो, उसको वापस करना होगा। अल्लाह कहेगा कैसे वापस करूं, अभी तो मैं मर के आया हूँ, कब्र में खाली हाथ आया हूँ। अल्लाह कहेगा घबराओ मत, उसका भी इलाज है, और एक नेकी है 40%, 10% उसको दे देगा। 100 आदमी है, 10-10 करते करते 40 आदमी को दिला दिया, अब 60 आदमी बच गए। अल्लाह बोलेगा तुम्हारा नेकी खत्म हो गया, 60 आदमी है अभी, बोलेगा अल्लाह क्या होगा, उसका भी इलाज,
60 आदमी का जो गुनाह है तुम्हारे ऊपर आता है। देखिए कर्ज क्या है। शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होगा उसका भी मामला अटक जाएगा अगर वो कर्जदार होगा, लटका देगा उसको। कितना बुरा फंस गया वो आदमी जो मोहल्ले में शेर बन रहा था, जिसका लिया उसको तो देना होगा, यहाँ नहीं तो वहां, ये तो कंफर्म है। अच्छा इसमें भी एक बात है, आपको हैरानी होगी कि जो लोग फ्रॉड टाइप के हैं, जो कर्ज लेते देते नहीं है, आप उनसे जाकर अच्छे दिल वाले अच्छे साफ में बोले कि भाई अल्लाह से डरिए, आप वापस कीजिए। बोलेगा नहीं 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 है, मेरे पता ना नहीं दे रहे हैं, तो बोलेगा वो आदमी बोलता है जो अच्छा आदमी है, मैं आखिरत में ले लूँगा अल्लाह से। जानते हो क्या बोलता है, तंज करता है, एक काम करो 50,000 और दे दो, आखिरत में ले लूँगा। कितनी उसकी हिम्मत बड़ी अल्लाह की नाफरमानी है कि नहीं। इस तरह के लोग और दे दो 1,00,000 रुपया, आखिरत में ले लो। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को, एक आदमी का पैसा लेकर उसको दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आखिरत का भी मजाक उड़ा रहे हैं, आखिरत का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आखिरत में तो हवा टाइट हो जाएगी उसकी। अब वो आदमी का नेकी खत्म हो गया, कर्ज बांटते बांटते, मतलब 60 आदमी बच गया, अल्लाह करेगा वो सब का गुनाह इसके ऊपर, तो वो कहाँ जाएगा, नेकी जीरो, सिर्फ प्लस में क्या है, गुनाह, जहन्नम में, जहन्नम में चल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा दिल से डरो, जी जी तुम लोग अल्लाह की तरफ लौटाए जाओ, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, हर नफ्स अपने किए हुए का पूरा पूरा बदला पाएगा, हर नफ्स। अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु मतलब एवरी, हर नफ्स, एवरी पर्सन, हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई बच नहीं सकता। ऐसा ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं मेला घूमने जा रहे हैं, टिकट नहीं कटा, भीड़ में से एक आदमी निकल गया, 10 दोस्त है, एक आदमी भीड़ में से निकल गया, 9 ही टिकट में काम हो गया। वहाँ एक एक आदमी से अल्लाह फेस टू फेस मुलाकात करेगा, एक एक आदमी से। और दुनिया में इंटरव्यू लेते आदमी थक जाता है, चलो जा जाओ, जाता है नहीं आगे बढ़ जाओ, वहाँ पे अल्लाह सबको वक्त देता है। अच्छे से अल्लाह थकता नहीं है, अल्लाह की रात थकती नहीं है, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, इंसाफ होगा, अदल होगा। ये कर्ज के बारे में। अब उसके बाद एक पूरी आयत, पूरा एक सफा जो है कर्ज के बारे में है कि कर्ज अब लेन देन कैसे करना है। ये आप लोग भी अपनाएं, मैं खुद अपना, आप लोग भी अपनाएं। हम किसी से लेते हैं, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी एक नहीं 3-4 डायरी बनाई, बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, एक जगह नहीं 3 जगह लिखते हैं, शायद क्या गलती हो जाए, नाइंसाफी हो जाए। एक रफ डायरी है जो बाहर में है कि बच्चा फीस दिया और लिख के अपना काम में लग गया, रात को बैठे डायरी लिखी, ये बच्चा फीस दिया है, वहाँ डेट के साथ कागज का चुटका फाड़ कर रखे हुए, चुटका में लिख देंगे फरवरी 2024 फीस, नाम कितना है, अब पैड का स्टम्प बनाएंगे, पैड मार के उसके वालिदैन को व्हाट्सएप में, जरूरत नहीं इसकी, गार्जियन ने कहा है हमारा जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आप मतलब मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं, बड़ी मेहनत नहीं, मुझे आखिरत की जरूरत। हो सकता है फीस दिए हम लिखे नहीं, हमारा ज़हन भूल गया तो आपसे फीस मांगने लग जाए, आप बोले हम दे दिए हैं तो नहीं इत्तेफाक़ी हो गई ना, वो बोले दे दिए, हम बोले नहीं हम मिल भी नहीं किया, क्या होगा मामला। 3 डायरी हम बनाए, कर्ज भी लेते हैं या किसी को देते हैं, डेट टू डेट लिखा हो। और आपको हैरानी होगी, चूँकि ऑन रिकॉर्ड में बता देता हूँ, जितने दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कौन सी तारीख को संडे पड़ रहा है, कौन सी तारीख को जुमा में मैंने प्रोग्राम किया है, और किसके हाथ से मुझे पैसा मिला है, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, आप चाहे तो ले सकते हैं, उससे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा किस हफ्ते में नाका पड़ा है। कई बारिश हो गई, एक मरतबा हम नहीं आए थे और डेट लिख दी, लिख दिए बरसात, सब लिखा हुआ है, मेरा बचपन से आदत है, बचपन से आदत है। मेरी डायरी आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि यहाँ जो दर्स हो रहा है, हम लोग बोले हुए हैं कि इससे पहले जुमा को भी हुआ था क्या, तो हाँ एक मतलब दरबंगा के जुमा में हुआ था, तो तारीख कौन सी तुम्हें लिखा हुआ, लिख के रखते, मेरी आदत है। क्योंकि मुझे कर्ज से, जिससे हम शिर्क से डरते हैं, अल्लाह शिर्क में इतना ना हो जाए, मुझे कर्ज से डरना है, अल्लाह ज्यादती ना हो जाए, किसी का पैसा लेकर मैं ना बैठ जाए। लिखने से क्या होगा, यादाश्त जितनी भी भूल जाए, रिकॉर्ड वो खराब नहीं, डबल कलम नहीं चलेगी। खैर यहाँ पे अल्लाह ने वही चीज को बयान किया कि कर्ज बिल्कुल आपके किसी को, देखिए मुआशरा क्या बोलेगा, आपके पास एक आदमी है, भाई
जरूरत है हमको 5,000 रुपये चाहिए, आप कहेंगे कि काम करो, इधर आओ बैठो, लिखो अपने हाथ से यहाँ, इतना तारीख को मैं आपसे लेके जा रहा हूँ, वो ले लेगा, उसको जरूरत है, जाकर पीछे क्या बोलेगा पता, भरोसा नहीं, उसको यकीन नहीं मेरे ऊपर, मैं भाग जाऊंगा, मैं चोर हूँ, है ना, इसी होता है ना। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों को अल्लाह कह रहा है, जो मोमिन है मुसलमान है, इज़ा तदायनतुम बिदैन इला अजलिन मुसम्मा, एक मुय्यना मुकर्ररा मुद्दत तक अगर किसी को तुम आपस में कर्ज को लेन देन करो, फक्तुबू, तो उसको लिख लो, फक्तुबू, इसको लिख लो। ऐ ईमान वालो, आपस में तुम जो लेन देन कर रहे हो कर्ज का, दैन मतलब होता है कर्ज, बेदैन का लफ्ज क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि दैन महर नहीं होता है, महर कर्ज नहीं है, हक महर होता है, वो हक है लड़की का, हम कर्ज बोलते हैं, कर्ज का मतलब ये हुआ कि यानी लड़की ने कभी दिया होगा तो उसको वापस करना, नहीं ना माना होगा, तो दैन महर। अब गौर करने की जरूरत है कि हम लोग बाप दादा के जो दीन इस्लाम को समझते आ रहे हैं वो एकदम अलग है, और अल्लाह उसके रसूल का जो दीन इस्लाम है वो बिल्कुल अलग है। बचपन से घरों के अंदर जो दीन हम देख रहे हैं वो हमारे बाप दादा का दीन है। शादी में बताइए दैन महर कितना है, बड़े बड़े मौलवी कहते हैं दैन महर लिखवाइए, अरे दैन का मतलब क्या हुआ, दैन मतलब कर्ज हुआ। अगर कोई मौलवी कह देगा अच्छा लड़की से आपको लिए थे क्या, कैसे बात है, कर्ज का मतलब क्या हो, लौटा रहे, लिए तो लौटा रहे हैं, नहीं, उस बच्ची उस लड़की का हक है, इस्लाम ने जमानत के तौर पे वो रकम मुकर्रर किया है। अल्लाह ने कहा ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम बिदैन, जब तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो, इला अजली मुसम्मन, एक मुकर्रर मुद्दत तक, दो चीज अल्लाह ने बयान किया कि जब लेन देन हो, ठीक है, तो एक मुकर्रर मुद्दत लिमिट हो, कब देना है पूछ लिया जाए, हाँ ठीक है आपको देंगे, कब दीजिए, ये होना चाहिए। उसने कहा ईद के 5 रोज बाद दे दूंगा, अल्लाह ने कहा फक्तुबू, उसको लिख लो, साइन करवा लो उसका, ये तरीका है कर्ज का। वल यक्तुब बैनकुम कातिब बिल अदल, कातिब को चाहिए, कातिब मतलब लिखने वाला, ठीक है, क्योंकि कातिब बहुत प्योर उर्दू हो गया, आम जुबान में लिखने वाला, लिखने वाले को चाहिए बिल अदल, अदल से लिखिए, अदल का मतलब जैसे एक आदमी का कर्ज है और मेरा ही आदमी, हम लिखने वाले, तो उनको सेटिंग कर दिया, हम कर्ज लेने जा रहे हैं, वो आपको बैठाएगा, हम 10,000 लेंगे, वो आपने भरोसा करता है 5 ही लिख दीजिए, 5,000 बच गया ना, मेरा करोड़ हो गया। तो अल्लाह ने लिखने वाले से कहा क्योंकि एक देने वाला है और एक लेने वाला है और एक लिखने वाला, 3 आदमी पैदा करोगे ना। अगर लिखने वाला नहीं भी है, देने वाला ही लिख रहा है, तो अल्लाह उसी को कह रहा है कि तुम उसको 10 दे रहे हो और 20 मत लिख देना, ये भी पहले सोच समझ ले, हम दे रहे कर्ज किसी को, देख रहे हो देख नहीं रहा है, भाई 10 रुपये दे दिए, खाते में लिख दिए 20 रुपये, तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं। अब कल जब हम क्लेम करेंगे 10 आदमी को बैठाएंगे, तो देखिए 20,000 पे साइन किया रही है, हम कुछ बोलेंगे ये साइन किया, ऐसा भी होता है। तो अल्लाह ने कातिब को कहा वल यक्तुब बैनकुम कातिब बिल अदल, कातिब को चाहिए कि अदल के साथ इंसाफ। अब इंसाफ कैसे होगा, भला या कातिबुन अन यक्तुबा, कातिब को चाहिए कि इनकार ना करे लिखने से। अब आप दोनों हम दोनों हैं लेन देन करने वाले, तो इनको बुला लिया भाई तो आ जाइए, फोन करके एक कर्ज का मामला तो लिख दीजिए, भला या कातिब अन यक्तुबा, कातिब को चाहिए कि इनकार ना करे, अगर आपको कोई बुला रहा है तो इनकार मत करें, लिखना ही तो है, और क्या है, कमा अल्लाह, जैसा कि अल्लाह ने आपको सिखलाया है, यानी जैसा अल्लाह ने आपको तालीम दिया है, आप पढ़े लिखे आदमी है, अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, किसी ने फोन करके बुला लिया कि भला भाई आइए जरा सा हम एक आदमी को कर दे रहे, लिख दीजिए आप, हम लिखेंगे तो सकता खुशक हो कि बढ़ा के लिख दिए, बातें मिटा दिए, मेरी राइटिंग है, आप ही लिख दीजिए, ताकि कल जब आप नहीं देंगे तो हम आपको जब बुलाएंगे तो समाज बोलेगा ना, मुआशरा कि हाँ राइटिंग तो दोनों करी है, तीसरे आदमी, तो आपको जब बुलाया जाएगा तो बोलेंगे हाँ एकदम सही। तो अल्लाह ने कहा कि कातिब को चाहिए कि वो लिखे जैसा कि अल्लाह ने सिखलाया और इनकार ना करे, फलयक्तुब वलियुमलिल लज़ी अलैहि हक, और जिसके जिम्मा हक है, अल्लाह ने कहा जिसके जिम्मा हक है वलियत्तकिल्लाह, उसे चाहिए कि अल्लाह से डरे। एक आदमी कर्ज ले लिया तो उसकी जिम्मेदारी है ना कर्ज अदा करने की, है कि नहीं,
कर्जदार को अल्लाह कह रहा है वली यत्तकिल्लाह, उसे चाहिए कि अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे, लौटाना है हमको। रब्बहू, वो अल्लाह जो उसका रब है। ये भी अल्लाह ने कहा कि यत्तकिल्लाह से बात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने कर्ज के बारे में कितनी गंभीरता से लिया है, तो सीरियस मैटर है। अल्लाह ने कहा कि वली यत्तकिल्लाह रब्बहू, उसे चाहिए जिसके जिम्मा हक है कि उस अल्लाह से जो उसका रब है, इसको रब मानता है, वला यबखस मिनहु शैया, उसमें से कुछ मिटाए नहीं। इसको भी कहा जा रहा है जिसने कर्ज दिया है, क्योंकि रिकॉर्ड उसी के पास रहेगा, कर्ज देने वाले के चले जाएगा कर्ज। अगर अच्छा है तो फिर उसका रिकॉर्ड दे दीजिए, इसको बेहतर चीज है। आज के जमाने में जब 2 स्लिप बनाइए उसको भी एक आप रखिए, ताकि एक दूसरे के क्लेम ना हो निकल जाती है। अल्लाह ने कहा कि जिसके जिम्मा हक है, जिसने कर्ज दिया है, उसे अल्लाह ने बोला जब खस मिन शैया, उसमें कुछ मिटाएंगे, कुछ मिटा देते हैं, मिटाए कुछ लिख देते। फिर आगे अल्लाह ने बयान किया फ़इन कान लजी अलैहि हक, और जिसके जिम्मा हक है, सफीहन, वो नादान हो, जहन से कमजोर हो, और ज़ईफन, या बदन से कमजोर हो, बुजुर्ग आदमी हो, और ला यस्ततिउ अन युमिल्ला हुआ फलयुमलिल, या वो लिखने की ताकत नहीं रखता। 3 लोगों का जिक्र हुआ कि जिसके जिम्मा हक है, या तो वो सफी हो, नादान हो, ज़ईफ हो, कमजोर हो, या वो लिखने की ताकत नहीं रखता, और ला यस्ततिउ अन युमिल्ला, लिखने की ताकत ही नहीं रखता, कमजोर आदमी कलम ही नहीं पकड़ पा रहा है। तो अल्लाह ने कहा फलयुमलिल वलियहु बिल अदल, तो उसके लिए एक वली बना दिया जाएगा और वो अदल के साथ लिखेगा। जैसे लड़की का निकाह होता है तो लड़की की इजाजत रजामंदी उसके वली से, और लड़की का वली कौन होगा? उसका बाप, है ना। उसी तरीके से एक आदमी है, चाहे कर्ज देने वाला या लेने वाला, वो नादान है, कमजोर है, ताकत नहीं लिखने की, एक 3rd पर्सन को वली बना। ऐसा आदमी जो कमजोर है, ज़ईफ है, ताकत नहीं लिखने की, एक 3rd पर्सन को लाए, देख रहा आप लिख दीजिए। तो उसके वली को क्या कहा गया सुनिए। अल्लाह ने कहा वली हो बिल अदल, वली जो हो वो अदल के साथ लिखिए। उसे भी अल्लाह ने कह दिया, यानी कर्ज के लेन देन में जिसकी भी एंट्री हो रही है, अल्लाह ताला उसके बारे में बयान कर दिया। जिसकी भी एंट्री हो रही है, लिखने वाले की एंट्री हो रही है, अल्लाह ने कहा कातिब को चाहिए कि अदल से लिखे। वली की एंट्री हो गई इस कंडीशन में, तो वली से अल्लाह कह रहा है कि अदल होना चाहिए, अदल के साथ लिखो। अब आगे अल्लाह ने बयान किया वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, मर्दों में से 2 लोगों को गवाह बनाओ। कर्ज कैसे लेना है? एक लेने वाला, एक देने वाला, ठीक है, और 2 गवाह, तो 4 हो गए। चारों में से कोई लिखने को तैयार हो गया तो 5वें को जरूरत नहीं लिखने के लिए, और अगर नहीं आप चाहते कि लिखने वाला भी कोई और हो तो 5 आदमी। एक कर्ज 5 आदमी की मौजूदगी में दे। मुआशरे में है कि आप ऐसा करेंगे तो आप पर शक किया जाएगा। आपका रिश्तेदार, हमारी रिश्तेदारी आ गया, हमसे कर्ज मांगने कि आप मेरे भतीजे हैं, भगीने हैं, हमको 10,000 दे दीजिए। हम कहते हैं कि खालू फूफा बैठी है तो लिखा पढ़ी हो जाए, तो क्या बोले बताइए? आलिम है, रिश्तेदारी बाहर आई है, तकलीफ देकर कर्ज दे रहा है, मुआशरा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। बताओ, लिख दिया, 2 आदमी को गवाह ला दिया, हम अकेले में लेने आए थे, 2 आदमी जान लिया, ये दलील देकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो उसको ये आयत दिखाई जाएगी कि मेरा कानून नहीं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह को मानते हैं तो बड़े मानते हैं, अल्लाह का कानून अच्छा है कि मेरा कानून? अल्लाह का कानून अल्लाह का कानून। कि 2 आदमी को गवाह बनाएंगे, एक आदमी आप लेके आइए अपने तरफ से, एक मैं लेके आता हूँ, या मैं दोनों में ही लेके आ जाता हूँ। अल्लाह ने कहा वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, मर्दों में से 2 गवाह बना लो। अभी भी अल्लाह ने कहा कि अब मर्द नहीं मिल रहे हैं, एक ही मर्द है, गवाह 2 चाहिए। तो अल्लाह ने कहा फ़इल्लम यकूना रजुलैन, अगर तुम 2 आदमी नहीं पा रहे, एक आदमी है, अल्लाह ने कहा फरजुलुन, एक आदमी है, वम्रातान, और 2 औरतें होंगी, मिम्मन तरज़ौना मिन शुहदा, जिनकी गवाही से तुम राजी हो। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन मसला निकल के आया कि एक मर्द की गवाही के बराबर 2 औरतों की गवाही। याद रखें, इससे पता चला कि औरतें फितरी तौर पे मर्दों से कमजोर हैं, और ये कोई आयब नहीं है। बहुत सी औरतों को या बहुत सी खवातीन को ये बात बुरी लगती है
ہم کمزور کیسے ہیں؟ ہم کیسے کمزور ہیں؟ ہم کو کمزور کہا جاتا ہے، عورت کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، عورت کو کمزور کہا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ آج کل جو خاص کر ویسٹرن کلچر کو اپناتی ہیں وہ زیادہ کہتی ہیں کہ کیسا دین ہے بھائی، مرد مضبوط مرد کمزور نہیں، عورت بھی ساتھ میں ساتھ چل سکتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو بھاری بھرکم کام ہے وہ مرد کرتے عورت کرتی ہے؟ کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی ایسا کام کیا عورتوں کو جو ان کی کیپیسٹی سے باہر ہو؟ جتنے بھاری بھرکم کام سب مرد کرتے ہیں، عورت کو وہی کام دیا جاتا ہے جس کو آسانی سے کر سکتے۔ وہاں پہ چلائیے آپ کہ ہم 100 کلو کیوں نہیں اٹھائے، ہم 200 کلو کیوں نہیں اٹھائے، ہم کیوں مردوں سے پیچھے رہے؟ وہاں بھی تو آپ کو وروଧ کرنی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہاں فائدہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کو حقیقت میں فطری طور پر مردوں سے کمزور بنایا ہے، یہ تو ان کی خوش نصیبی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کمانے کھانے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، اور بیوی سے کہا ہے کہ تم گھر کی حفاظت کرو، مردوں کی، ان کے بچوں کی حفاظت کرو۔ آج کل جو چلن ہے نا کہ عورت بھی جاب کرے، نوکری کرنا چاہ رہی ہے، میرے بھائیوں اس سے بہت خطرات ہے۔ عورت جہاں نوکری کرے گی وہاں اسلامی ماحول نہیں ہوگا، غیر مردوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا، نین سے نین ملیں گے وہاں پہ دن رات، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دو انجان لوگ رہتے ہیں تیسرا اس میں کون رہتا ہے؟ لوجک ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، شادی شدہ عورتیں کسی اور سے شادی کر لیں گی، بچے رہتے بھی کسی اور سے کر لیں گے۔ تو اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ سعودی عربیہ کے اندر، گلف کے اندر جو لڑکیاں یا خواتین کام کر رہی ہے ان کے لیے باقاعدہ وہ قانون اتنا سخت ہے کہ کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا تھکنے کی۔ سوچ لیجیے، یہاں پہ نہیں ہے کیا، وہاں اتنا سخت قانون ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ہم کچھ غلط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ماشاء اللہ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ نے مردوں کو فطری طور پہ مضبوط بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ گھر کی باغ ڈور خرچ کی ذمہ داری مرد اٹھائے گا، عورت اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے پیسے کی، اس کے مال کی، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے گی۔ یہ قانون ہے رب العالمین۔ یہاں پہ اللہ نے کہا جب دو مرد نہ ملے تو ایک مرد ہو اور دو عورت ہو، جس کو تم راضی ہو، جسے تم راضی ہو، اسے تم رضامندی رکھتے ہو۔ ان تزل اجا، دو عورتوں کو گواہی کیوں ہے؟ یہ سمجھ لیجیے، ان تزل احداہما، اگر ایک بھول جائے تو تذکر احداہما الاخری، دوسری عورت کو یاد دلائے۔ لیکن کتنی کمزور عورت ہے، عورتوں کی فطری کتنی کمزور ہے فطری طور پر، کہ اللہ بیان کر رہا ہے یہاں پہ کہ دو عورت کی طرح دیا ہے کہ ایک اگر بھول جائے، بولی کہ ہم نہیں معلوم کتنا لیا گیا، نہیں آپ کو معلوم 100 روپیہ لیا گیا، تب کو یاد ہے۔ یہ فطری طور پر عورتیں کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہ کو بلایا جائے، اذا ما دعوا، جب گواہ کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، بولا یا وہ انکار نہ کرے۔ معاملہ بگڑ گیا، لینے والا بولا کہ نہیں ہم نہیں لیے ہیں، نہ دے دیے آپ کو، آپ دیکھیے کھاتا، تو گواہ کو بلایا جائے، آپ ذرا آ جائیے، معاملہ ایسا ہے۔ تو قرض میں سب سے پہلے دیجیے لکھیے، اور جیسے جیسے واپس ہو رہا ہے ایک منٹ لکھیے، ایک موٹا رقم دیے ہیں 1000، فلاں تاریخ 100 آیا، پھر 200 آیا، پھر 300 آیا، جب بھی لکھیے اکیلے نہیں تو گواہ کو بلا کے یاد رکھیے، جو پوری کاروائی ہوگی ان 5 لوگوں کے بیچ میں ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، جو قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، دیکھیے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا۔ یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیے قرآن کا۔ اب کچھ لوگ بولے کہ 500 کو کیا لکھا ہے، بولتے نا لوگ 1000 روپیہ 500 200 روپیہ کیا دو آدمی کو بلایا جائے دیکھا جائے، نہیں، اللہ نے کہا صغیرن اور کبیرن، صغیر مطلب چھوٹا، کبیر مطلب بڑا۔ اللہ نے کہا کہ قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، الا اجل ہی، جو مقررہ مدت کے لیے دیا جا رہا ہے، ولا تسأموا ان تكتبوا، تم اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ 10 کے بعد پوچھیں گے کہ امام صاحب اگر 10 روپے کسی کو دے، چھوٹا معمولی رقم لکھ لیجیے، اس کو لکھیے، اگر 10 روپے کے لیے آخرت معاملہ پھنس گیا تو ہماری نیکی اس کو دلائے گا۔ ہم کو نیکی کی ضرورت ہے، ہم کو پلس میں چلنا ہے، وہاں پہ مائنس ہونے کا مطلب کہاں چلے جائیں گے؟ تو لکھیے، اس کو گواہ رکھ لیجیے، لکھیے ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف والی بات ہے۔
ये भी अल्लाह ने बयान कर दिया। छोटा रकम या बड़ा रकम, लिखो, ये अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इंसाफ वाली बात है। अक़वामुल शहादा, और गवाही के एतबार से बहुत दुरुस्त है। फिर अल्लाह ने कहा वअदना अल्लाह तरताबु इल्ला अन तकून तिजारतन हाजिरतन, और ये कि शक शुबा को खत्म करने वाली है। अदना अल्लाह तरताबु, जो शुकूक रह जाएंगे कि 10 ही दिया था कि 15 दिया था, वो अदना वो भी खत्म है। अल्लाह ने कहा, फिर अल्लाह ने कहा अल्लाह इल्ला अन तकून तिजारतन हाजिरतन, हाँ ये और बात है कि जो नगदी तिजारत हो लेंगे, ये और बात है। यहाँ पर तिजारत के जिक्र किया गया, खरीद फरोख्त है। एक आदमी क्या बोला 5 किलो आटा दीजिए, कितना हुआ 4 5 20 200 रुपया दे दिए, ले लीजिए। अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, समझ गया ना, उसमें क्या लिखे, कैश कितना दिया, हमने सामान दे दिया, उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने कहा इल्ला अन तकुन तिजारत हाजिरतन तुदीरुना बैनकुम, जो तुम आपस में लेन देन कर रहे हो, तुदीरुना बैनहुम, जो तुम बैनकुम, जो आप लेन देन कर रहे हो, तिजारत मतलब तिजारत हाजिरतन, जो कैश नकदी हो रहा है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं। बताया दुकानदार हमें कहे नमक का पैकेट दिए 5 रुपए दिए, चला तुमको लिखने की जरूरत नहीं। फलैसा अलैकुम जुनाह, तुम पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तक्तुबू, अगर तुम उसको ना लिखो। कारोबार है, कोई कपड़ा वाला है, सौदा वाला है, जो भी है, कहे पैसा की सामान लिए हमको लिखना नहीं है, नहीं लिखेंगे तो गुनाहगार नहीं, नहीं लिखेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। व अशहदू इज़ा तबायातुम, और ये कि जब तुम बैव शरा करो, खरीद फरोख्त, तो उसमें तुम गवाह बना लो। ये बैव शरा कौन है, उधार बाकी, उधार बाकी वाला, तो गवाह बना लो। गवाह लिखना भी गवाही है, अगर लिख रहे खाते में तो सामने, तो ये भी एक सबूत है, एक गवाह है। अब अल्लाह ने कहा वला युज़ार रकातिबुन वला शहीद, लिखने वाले को तुम नुकसान ना पहुंचाओ। ये भी अल्लाह ने कहा कि वला युज़ार रकातिबुन वला शहीद, लिखने वाले को और गवाह देने वाले को तुम नुकसान ना पहुंचाओ। मतलब नहीं समझे, हमने कर्ज लिया आपसे, दो गवाह है, दोनों को मैं जानता हूँ, दोनों को मैं रात को फोन करवा के आइए चाय पी सकते हैं, तो रात को आ गया, तो सूरत का देने जाएंगे पैसा, अगर पैसा देने जाएंगे कहाँ जबर जबर करो मर को करेंगे, बोल देना क्या दे दिया पैसा, हाँ लिखे, या जाके जल्दी से लिख दो, उसमें खाना तुम्हारे पास है, अभी जाके लिख दो, कोई डेट बैठा दो, हमको बता दो डेट, हमको याद रहेगा तुमको याद रहेगा, उसको डराना है। अल्लाह ने कहा वला युज़ार रकातिब वला शहीद, ज़ारा युज़ार को नुकसान पहुंचा है, कातिब लिखने वाले को, शहीद गवाह देने वाले को नुकसान ना पहुंचाएगा। ये है, या ये भी एक तरीका है कि अगर हम पैसा देने जाएंगे तुम कलकत्ता निकल जाओ, और नहीं भी निकलोगे तो बोलना कलकत्ता में हम कल ही पैसा देके आएंगे, ताकि तय हो गया कि लिखना तुम ही को है, हम कल 5,000 देंगे, तुम शाम को जाओगे, हम दिन में दे देंगे, शाम को जाकर 10,000 लिखो, तो 1,10,000 कट जाएगा, 90,000 बचेगा। तो सब सेटिंग इसको बोलते हैं, ये भी नुकसान पहुंचाने के बराबर है। अल्लाह ने कहा इन तफअलू, अगर तुम ऐसा करोगे, गवाह को नुकसान पहुंचाओगे, कातिब को नुकसान पहुंचाओगे, लिखने वाले को, तो फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो तुम खुली गुनाह करने वाले हो, वाज़ेह गुनाह करने वाले हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह जो तुमको सिखला रहा है, यानी ये अल्लाह तुमको तौर तरीका बता रहा है कर्ज लेन देन का, डरो अल्लाह से जो अल्लाह तुमको सिखा रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का जानने वाला है। आज तक का दर्स इख्तिताम हो गया। अगर इसमें सवाल है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले आप लोग पूछ सकते हैं। 282 को जिस्ट में थोड़ा समझा दो, थोड़ा सा पूरी आयत सवाल ये है कि जो आयत नंबर 282 282 गुजरा है, बहुत लंबी चौड़ी आयत, पूरे एक सफा की, इसका खुलासा क्या है? शॉर्ट में समझ लें कि अल्लाह ताला ने सूद को खत्म करके कर्ज को नाफिज किया है। दो चीजों को, एक सदका और खैरात को नाफिज किया अल्लाह ने, जिसमें लौटाने का कोई मसला नहीं, आप खुशी से किसी को दे रहे हैं। दूसरा है कर्ज, कि आप उससे कोई मांग रहा है, आप दे रहे हैं, तो कर्ज को कैसे देना है? कर्ज देने का तरीका ये है कि जब कोई आप किससे कर्ज मांगने आए, चाहे छोटी से छोटी रकम हो या बड़ी से बड़ी रकम हो, उस रकम को लेन देन करने से पहले दो गवाह बना लीजिए। एक लेने और देने वाला दो आदमी, दो गवाह चार आदमी, चारों में से कोई लिखने को तैयार हो गया, जिसको कातिब कहते हैं, तो पांचवें को लाने की जरूरत नहीं है। अगर तय हो जाए कि नहीं पांचवा भी रहेगा तो लिखेगा, सबका अपना अपना काम रहेगा। मेरा काम है देना, आपका काम है लेना, उसका काम है लिखना, इन लोगों का काम गवाही देना। तो 5 लोग मिलाकर कर्ज को लेन देन करें, जितना ले रहे हैं, कौन सी तारीख है, कौन सी दिन है, उसको लिखे,
और जिसको कर्ज दे रहे थे पूछे कि आप कब लौटाइएगा, लौटाना कब है आपको, वो उसने डेट दे दी 15 तारीख को, उसमें गवाह को और कातिब को डराना धमकाना नहीं है। कातिब और गवाह को भी हुक्म अल्लाह ने दिया है कि लिखना है और गवाही देना है तो अदल के साथ, यानी इंसाफ के साथ। कर्ज जिस दे रहा है उसको अल्लाह ने पिछली आयत में कह दिया है कि अगर वो फकीर गरीब मिस्कीन है तो उसको मोहलत दे दो, मोहलत के बाद भी अगर नहीं लौटा पा रहा है तो तुम उसको माफ कर दो, अन तसद्दकू खैरुल लकुम, अल्लाह कह रहा है उसको माफ कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर इनको तुम तालिब हो तुम जान लो। कर्जदार को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम अल्लाह से डरो, जो लिए हो, जो मोहलत मिली है, जो मुआयना मुद्दत है, उस पर तुमको लौटा देना है। अगर तुम कर्ज ले रहे हो, खूब खर्च कर रहे हो, खा पी रहे हो, अच्छा नहीं लौटा रहे हो, तुम गुनहगार हो, अल्लाह ताला कल तुमको क़यामत के दिन पकड़ेगा। ये उसका खुलासा हुआ मुख्तसर में। सर अभी हम लोग जो ऑनलाइन जो ये करते हैं उसमें रिसीप्ट शेयर करते हैं, तो वो भी तो एक शक्ल हो गया इसका एडवांस। किसी को पे करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं फोन पे में, तो वो भी एक तरह का लिखना एडवांस में तो हो जाता है। हाँ वो ठीक है। इसमें सवाल ये कि जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं तो कोई मुंबई में हमसे कर्ज मांग रहा है, अब वो तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, वो बाहर में है, अब उसको यहाँ से हमें ट्रांसफर कर दिया मुंबई, और हमने उसका रिसिप्ट जो है उसके व्हाट्सएप पे जो भी भेज दिया, तो ये भी तो काफ़ी है, ये नाकाफी है, क्योंकि लिख तो लिए, कातिब का काम हो गया, गवाह का काम करना। अगर दो लोग और फ्रेंड लिस्ट में तो दो लोग और को हाँ बात कर लें कि दो लोगों को हम हाँ रख के वही कहना है कि ये फॉर्मूला वहाँ भी लगेगा कि जो मांग रहा है उससे कह दे कि देखो भाई हम देंगे, लेकिन 2 गवाह बनाएंगे हम और लिखा पढ़ी होगा, और तुम कब दोगे, तो डायरेक्ट बात कीजिए, इससे ताल्लुकात खराब नहीं मजबूत हो, ताल्लुकात खराब भी हो गया, ईमान मजबूत हो गया, समझ गए ना, अल्लाह क्या बचाए। उसे कह दो कि देखो हम 2 आदमी गवाह बनाएंगे, बोले अरे भाई हम आप पे भरोसा करके फोन, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये बात याद रखिए भाई। किसी को बताइए इज्जत की बात, हम आपकी इज्जत अल्लाह ने नहीं बयान किया है, क्या अल्लाह ने बयान करके किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया है? अल्लाह ने इंसाफ को कायम करने के लिए किसी का माल नाहक ना चला जाए, बर्बाद ना हो जाए, अल्लाह ने इंसाफ किया है। आज वो मांग रहा है तो कह रहा है कि इज्जत की बात है, कल जब वो देगा तो वो भी सही बात कहेगा कि तो गवाह बना लेते थे। और आजकल हुआ ऐसा कि कर्ज के पीछे दौड़ते दौड़ते तो कह रहा है कि मेरे पास सबूत पे थाना में केस कैसे किया, कल जाके बोलेंगे ऑफिसर को कि मेरा 50 रुपये कोई दे नहीं रहा है, तो बोलेगा कोई एविडेंस है, तो क्या जवाब देंगे हम? आज जो ले लिया वो तो इसी का फायदा उठा रहा है कि लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ है, कौन जानता है। हाँ तो तरीका दुनिया आज सिखा रही है, थाना आज सिखा रहा है, अरे भाई लेन देन करो तो लिखो, अल्लाह ने 14 साल पहले सिखा दिया। एक और सवाल है और था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका आदत होता है लेके नहीं देना, लेकिन वो हमसे ताल्लुक कांटेक्ट में है और फिर बोल रहे हैं कि आप मुझे दीजिए, जरूरत है, हम आपको दे देंगे, और हमें पता है कि वो शख्स का मतलब क्रेडिट सही नहीं है, वो हमेशा डुबा देता है, तो उसको देना सही होगा कि नहीं होगा? सवाल ये कि एक आदमी का रिकॉर्ड बहुत खराब है कर्ज के मामले में, और हम जानते हैं, हमको इल्म है, तो जिसका भी लिया नहीं दिया है, अब वो मेरे पास आया और आगे कह रहा है कि आप कर्ज दीजिए, मेरे कॉन्टेक्ट में, मेरे ताल्लुकात में, मेरे पहचान में, अब वो हमसे मांग रहा है, हमको मालूम है कि इससे कितने सारे लोगों से लिया है, नहीं दिया है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो आपको इख्तियार है, अगर आप जानते हैं तो नहीं दे मत दीजिए, क्या नहीं तो पैसा फंसाने। इसीलिए कहा गया ना कि लिखा पढ़ी में तो कर्ज लिए तो कहा गया अल्लाह से डरो, हर आदमी अल्लाह से डरे कि हम लिए हमको देना है। अब एक आदमी के बारे में जानते हैं कोई सा मामला है तो क्यों देख के हम फंसने जाए सामने वाला। और एक मिनट और एक नुक्ता याद रख ले कि जो आदमी का रिकॉर्ड खराब किया है वो जब आपसे इनकार खा लेगा तो उसको एहसास हो जाएगा, आज रिकॉर्ड सही होता तो नहीं जाता, इसको समझ में आ जाएगा। सामने वाले अगर इमोशनली होकर बोलता है, मुझे पता नहीं कि वो सच में उसको जरूरत है, जैसे बच्चे का दवा है या बच्चे का फीस है या कुछ भी ऐसा XYZ, मुझे पता नहीं कि वो सच में जरूरत है या फिर नहीं, लेकिन इतना पता है कि मार्केट में उसको वंडा और भी लोगों से लेने के रखा है, जब रिटर्न नहीं किया, लेकिन सामने से बोल रहा है कि बस दे दीजिए बच्चे का फीस है, तो ऐसे में फिर चूँकि हम तो वैलिडेट नहीं कर सकते उसको सच में जरूरत है या फिर नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई आदमी, हम जानते हैं कि आदमी का रिकॉर्ड खराब है, कर्ज लेता रहता नहीं है,
लेकिन जब मेरे पास आया तो जज्बाती तौर पे इमोशनल अंदाज में आया और रोने गाने लगा कि बच्चों को फीस देना है, ये करना है, तो हम क्या करें? जाहिर सी बात है, इंसान है, हमारा दिल पिघल जाएगा। उसका तरीका है, आप पूछिए आपको पैसा क्यों चाहिए, तो हमको स्कूल में फीस देना, चलिए कल स्कूल में हम आएंगे, चलिए हम कल स्कूल में जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। बहुत सारे लोग दवाई के नाम पे मांगते हैं, कोई दवा मांग रहा है, बिल्कुल सही बात है एकदम। कोई कह रहा है कि दवा लेना है, आइए स्लिप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए हमको, दवा खरीद के ले लीजिए। जो जरूरत और दवा ऐसी जगह से खरीदिए जो मोहल्ले का मेडिकल स्टोर ना हो सकता है मोहल्ले में सोसाइटी हो, खरीद देगा, तुम वापस ले लेना, पैसा दे देना, फिर आप स्लिप दो हमको और आप ही जाइए कहाँ से खरीदे, आज रात में ले लीजिए स्लिप, कल दिन में दवा पहुंचा दीजिए। तरीका है उसका, क्योंकि आपका दिल है जज्बाती हो गया, उसको देखकर पिघल गया, माया आ गया, तरस आ गया, तो आप मदद कीजिए, लेकिन उसका तरीका है, पैसा मत दीजिए, जो जरूरत है वो पूरा कर दीजिए। एक और भी दिमाग है, जैसे कि अगर हमें नहीं देना होता है तो बहुत टाइम हम लोग कहते हैं झूठ का सहारा लेते हैं, एक वाला काम है इसमें लग गया उसमें लग गया, तो वो कैसा है, झूठ बोले डायरेक्ट इनकार करो? तो वही तो आप ही का सवाल तो बताएं, जब लिखा प्रयोग होगा तो उसका सवाल है पहले तो इनकार कर दिया, तो फंस गया। कार्य अगर ऐसे करेंगे जो कुरान में जिक्र किया गया है, सामने वाला हिम्मत ही नहीं कर सकता। हाँ यार, और उसको मजबूत कर लीजिए, एफिडेविट करवा लीजिए। मैं इनकार कर नहीं, हमें नहीं सवाल- मिल सकता। देने वाले के लिए, देने वाले के लिए। सवाल करने का मतलब है, कोई अगर आ रहा हमसे मांगने के लिए, हम उसको पैसा नहीं देने के बजाय हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि हमको तुमको नहीं देना है, ना, या हम कोई बहाना बनाए। ना ना देखिए, उसमें दो तीन चीजें नहीं है हैं। ना। जो आपका सवाल है ना, दो तीन चीजें हैं। अल्लाह ने सूद को खत्म करने के लिए चीजों बनाया है, ये बात याद रखिए कि चीजें किस वजह से आई। हम नहीं देंगे अगर रहते हुए भी तो कहाँ जाएगा, सोचिए आप अंदाजा लगाइए। नहीं, ये सवाल उसके लिए है जिसका मार्केट में वैल्यू नहीं है, हाँ, उसके लिए सवाल। अच्छा, जो मांगने आ रहा है और उसे देना नहीं चाह रहा, हाँ, ना ना साफ सीधा बोल दीजिए, साफ साफ बोल दीजिए, नहीं हम नहीं देते। मैं बहुत से लोग झूठ का सहारा लेते हैं, ना, ना, कि झूठ तो बोलना ही नहीं है। झूठ बोलेंगे उसमें बहाना नहीं भाग उसमें साफ साफ बता दीजिए भाई हम आपको कर देंगे। पूछेगा क्यों, बोले क्यों, क्या आपको नहीं देना है, तो मन नहीं देने का, क्यों नहीं देना चाहते। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। और हमारे रुज़ू को तो कबूल फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। आमीन। वाक़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।